Hello guys, welcome back to my channel Medical Gyan by Epic Sushmita. This is Sushmita Sharma. So today's topic is human eye. So today we're gonna discuss about human eyes anatomy and physiology. So now we will discuss about the parts of human eye. As you can see in the image that the human eye consists of various parts. So what we will do, we will just take one part and learn that in detail. Okay, now the first thing is orbit. What is orbit? Orbit is a bony structure, okay, which holds the eye. ठीक है, ऑर्बिट एक बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारी स्कल का जो कि आई को होल्ड करता है. ऑर्बिट को हम आई सॉकेट भी बोलते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग इज देयर that orbit contain the lacrimal gland. Lacrimal gland is a gland that produces tear that lubricate and moisten the eyes, lashes and eyelids. Eyelids are the fold of the skin which covers the eye when you close it. Okay, then eyelashes are simply the hairs that grow at the edge of the eyelid. Conjunctiva are the tissues that line inside the eyelid. Okay, make it very clear that conjunctiva is a tissue that lines inside of the eyelids and covers the sclera. Moving on to the sclera. Sclera is the white part of the eye which is visible with our naked eyes. Okay, now sclera is a tough leather-like tissue that surrounds the eye and it will give eye its shape. Cornea. Cornea is a transparent and a clear layer at the front and the center of the eye. It is the front window of the eye. Anterior chamber. Anterior chamber is the fluid-filled space that lies immediately behind the cornea and in front of the iris. Behind the cornea and in front of the iris, the fluid that fills this chamber is known as aqueous humor. Okay, the fluid that fills the chamber is known as aqueous humor. These aqueous humors help to nourish the cornea and the lens. Lens is a clear, flexible structure that is located just behind the iris and the pupil. Then, posterior chamber. Posterior chamber is also a fluid-filled space that lies immediately behind the iris and in front of the lens. Now, note the difference between anterior chamber and the posterior chamber. In anterior chamber, the fluid is filled between the cornea and the iris, and in the posterior chamber, the fluid is filled between the iris and the lens. Now, the vitreous cavity. Vitreous cavity is located just behind the lens and in the front of the retina. Behind the lens and in front of the retina. The fluid filled is a gel-like fluid which is known as vitreous humors. This vitreous humor helps maintaining the shape of the eye. Retina is a layer that lines at the back of the eye. Retina जो है eye की back में present होती है. What it will do, it will just sense the light and create electrical impulses that travel through the optic nerve to the brain. We will discuss it more in the mechanism of eye. Okay, moving on. Retina has two type of photoreceptors. Rods and cones. Rods which are sensitive to light and cones which help in the perception of color. Macula. What is macula? क्या होता है macula? Macula एक central area होता है retina का which allow us to see fine details very clearly. यानी कि जो भी हम fine details देख पाते हैं किसी भी image का that is because of macula. And one more thing that it has the higher concentration of cones.
यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है कोन की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कोरॉइड्स, कोरॉइड क्या होता है? कोरॉइड इज अ लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। ये एक लेयर होती है टिश्यूज़ की जो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट नरिश द रेटिना। ये ब्लड वेसल्स से बने हुए होते हैं जो कि रेटिना को नरिश करने में हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, अब सबको पता होगा ऑप्टिक नर्व क्या होती है। ये क्या करती है? ये आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है। Okay, and it will carry the electrical impulses which are formed by the retina to the visual cortex of the brain where the images are formed. Okay, now since we have completed the introduction and the part of the eyes, now we will move toward the mechanism of the eye. Okay, for that just assume that there is a candle in front of you. Okay, now what that candle will do, how the image is formed, there are so many questions which are arising. Okay, I'll tell you that in details. For example, आपके सामने एक लाइट है। अब ये लाइट आपके आईज में जाके इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी और आपको कैसे दिखेगी। सो क्या होता है, जब आपके सामने एक कैंडल होती है, आपका फोकस उस पर होता है ना, तो क्या होता है, जो आपकी लाइट रेज हैं जो उस लाइट से निकल रही है यानी कि जो उस कैंडल से निकल रही है वो पास होंगी टू द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया क्या है? आपका फ्रंट विंडो ऑफ द आई, जो सबसे पहला पार्ट है यानी कि सबसे फ्रंट मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। तो जो लाइट रेज हैं वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आईज में एंटर होंगी। नाउ अब कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है। ये लाइट रेज अब कहाँ जाएंगी? आइरिस के पास जाएंगी। आइरिस के पास जाने के बाद आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। नाउ अब ये आइरिस से होते होते ये लाइट रेज प्यूपिल के थ्रू कहाँ जाएंगी? लेंस के पास, बिकॉज जस्ट बिहाइंड द आइरिस देयर इज लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, सो ये जो लाइट रेज हैं अब कहाँ पहुँच गई? ये हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के पास पहुँच गई हैं। अब क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या होता है? द क्रिस्टलाइन लेंस विल हेल्प इन द शॉर्टनिंग एंड द वाइडनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइट रेज। ठीक है, ये क्या करता है? शॉर्ट और वाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट कितना इसको चाहिए। सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट शॉर्टन एंड वाइडन द लेंथ ऑफ द लाइट रेज। और ये लाइट रेज अब कहाँ जाएंगी? रेटिना के पास, विच इज़ एट द बैक ऑफ द आई। जब हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे तब हमने सारा पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है। आई एम टेलिंग इट अगेन दैट लाइट रेज एंटर थ्रू द कॉर्निया, passes थ्रू द आइरिस, देन इट विल पास थ्रू crystalline lens and reaches to the back of the eye, that is retina, where the images are formed. Okay, now when these light rays passes through the retina, the image form is inverted. यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी हमारी रेटिना पे वो इन्वर्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कैंडल रखी है, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी वो कैंडल कैसी होगी? उल्टी होगी। सो हमें कैसे क्लियरली दिखता है ना। सो अब आपके पास रेटिना के पास आपकी लाइट रेज पहुंच गई हैं। नाउ रेटिना के पास दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कोन्स दैट आर सेंसिटिव टू कलर। ओके, जब ये लाइट रेज इन फोटो रिसेप्टर्स पे पड़ते हैं तो इन्हीं से अटैच कुछ फोटो पिगमेंट्स होते हैं। ओके, फोटो पिगमेंट्स, एंड इन फोटो पिगमेंट्स को हम रोडोप्सिन कहते हैं। मेक इट वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। रोडोप्सिन जो होता है ये कैसे बना है? ऑप्सिन से एंड रेटिनल से। रोडोप्सिन, रेटिनल एंड ऑप्सिन। ओके, जब लाइट रेज आपकी रेटिना पे पड़ी, रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर्स थे, उनके पास पड़ी, तो ये जो आपके फोटो पिगमेंट्स थे यानी कि रोडोप्सिन मीन्स ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये क्या होते हैं? ये डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी कि जब लाइट रॉड्स एंड कोन्स पे पड़ेगी तो उसकी वजह से जो फोटो पिगमेंट्स हैं यानी कि रोडोप्सिन जो कि ऑप्सिन एंड रेटिनल से बने हैं वो दोनों के दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे।
ओके, डिसोसिएट अलग अलग हो जाएंगे। नाउ ऑप्सिन, व्हाट इज ऑप्सिन? ऑप्सिन इज अ प्रोटीन। व्हाट इज रेटिनल? रेटिनल इज अ एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ओके, नाउ अब क्या हुआ, ऑप्सिन एंड रेटिनल अलग अलग हो गए। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्सिन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। उसकी वजह से जो ऑप्सिन है उसकी स्ट्रक्चरल परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, ओके, चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, जो आपकी ऑप्सिन है उसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होगा तो ये जो सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, बाइपोलर सेल्स के पास। ओके, बाइपोलर सेल के पास पहुंचेगा। बाइपोलर सेल के जस्ट नीचे क्या होता है, गैंग्लियन सेल। अब ये एक्शन पोटेंशियल बाइपोलर सेल किसको ट्रांसफर कर देगा, गैंग्लियन सेल्स को। ओके, बी वेरी क्लियर, बाइपोलर सेल से आपकी जो रेज है यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसके पास गया, गैंग्लियन सेल के पास। अब ये एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, इम्पल्सेस हैं, ठीक है, जो जनरेट हो रही हैं। सो फाइनली ये जो जितने भी इम्पल्सेस जनरेट हुई हैं जो बाइपोलर से गैंग्लियन के पास आई है, नाउ गैंग्लियन के थ्रू कहाँ जाएगी, थ्रू एक्सॉन्स। ये जो इम्पल्सेस हैं ये हमारी ऑप्टिक नर्व के पास जाएगी। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, ये जितने भी इम्पल्सेस आई थी इसको ले जाएगी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के पास ले जाएगी, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के पास, जहाँ पे ये जो इम्पल्स हैं, ये जो न्यूरल इम्पल्सेस हैं, ये एनालाइज्ड होंगी और एक इमेज फॉर्मेशन होगा। जो आपकी रेटिना ने रिकॉग्नाइज किया था वो इमेज जाके विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में क्या होगा, फॉर्म होगा। तो जो आपकी इमेज रेटिना पे आपको इन्वर्टेड दिख रही थी, नाउ जो विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द एरिया, सॉरी, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, वहाँ जाके ये इमेज आपकी सीधी दिखने लगेगी, जिसकी वजह से आप सीधा देखते हो। ओके, सो हियर वी आर डन विद द टुडेज वीडियो। होप दिस विल हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।